حذیفہ کو ایمان کی نشانی سمجھ رہا ہے کہ حذیفہ ہے، ہاں حذیفہ ہے تو نماز پڑھائی جا رہی ہے، حذیفہ نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھائی جا رہی. وہ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں. چنانچہ ابن کثیر کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اتخواف علیکم رجل قرأ القرآن. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت میں اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں خوف کرتا ہوں کہ جو قرآن کی تلاوت خوب کرے گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں اس شخص کا خوف ہے، میں اپنی امت پر اس شخص کا خوف رکھتا ہوں کہ جو قرآن کی تلاوت خوب کرے گا حتی اذا رویت بہجت علیہ، اور قرآن کی تلاوت کی رونق، قرآن کی برکتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی، چہرے سے ظاہر ہوگا کہ بہت بڑا قاری قرآن ہے، قرآن کا بہت بڑا جاننے والا ہے، قرآن کا بہت بڑا عالم ہے. دیکھیں حدیث کے جملوں پہ غور کریں، قرآن خوب پڑھیں گا تو آپ دیکھیں اس حدیث کے جو ہے پس منظر میں سامنے والا بھی ورسز نمبر، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ، پارا نمبر یہ، قرآن نمبر یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کے سوا وہ بات نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول 14 سال پہلے ایسے ایک شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں حتی اذا رویت بہجت علیہ، قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی، وقانا رداءہ الاسلام، اور وہ پھر اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا، اسلام کی بھی چادر پہن لیں گا. اطارہ الی ما شاء اللہ انسلخ منہ، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اس شخص کے بارے میں. تو سرکار کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہیں گا، جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دے گا. قرآن وہ شخص خوب پڑھیں گا، اسلام کی چادر وہ شخص اوڑھیں گا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گا، مگر اللہ رب العزت کا ارادہ غالب آئیں گا، اور غالب ہی آئیں گا کہ اللہ جہاں چاہیں گا اس کو پھیر دیں گا. وَنَوَازَهُ وَرَعَا ظَهْرِ، اور پھر وہ اچانک اسلام کی چادر کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا. پھر آگے سرکار فرماتے وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر وہ اچانک تلوار نکالیں گا، وہ شخص اپنے پڑوسی پر تلوار نکال لیں گا اور اپنے پڑوسی کو کہیں گا وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمت باندھے گا. دیکھ رہے ہیں آپ وہی سب منظر. قرآن خوب پڑھیں گا، چادر اسلام کی اوڑھیں گا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اس کو پھر اچانک گمراہ کریں گا، اور ایسا گمراہ ہوگا کہ اسلام چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا، اپنے پڑوسی مسلمان پر تلوار نکالیں گا اور اس مسلمان پڑوسی پر شرک کی تہمت لگائیں گا، کہیں گا تم مشرک ہے. قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوں گا، شرک کے قریب کون ہوں گا، یا وہ شرک کے قریب کون ہوں گا، المرمی و اورمی، جو شرک مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جس کو مشرک کی تہمت لگائی جا رہی ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوں گا، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ. یعنی حدیث کو آسان سمجھ لے، جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں مزار، پہلے جاتے تھے باپ دادا مندر، یعنی اس نے شرک کی تہمت لگائی. تب پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک مشرک ہوں گا یا سنی مشرک ہوں گے؟ یہ دیکھیں کتنا واضح کر دیا. تو نبی نے کیا کہا، کالا بلرمی، ارے جو دوسروں کو مشرک کہیں گا وہ خود سب سے بڑا مشرک ہوں گا. اب وہ خود مشرک ہے، اب میں نہیں کہوں گا، میں بھی آگے پروف کروں گا کہ وہ کتنا بڑا مشرک ہے. اور مزار پر جانا اس کو سب سے بڑا شرک لگ رہا ہے، اور اس نے اپنی کتابیں اور اپنے بیان کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ اس کے بیانات میں، اس کی کتابوں میں کتنا شرک بھرا پڑا ہے. اور آج کی جماعت جو ہے پورا دعویٰ کرتی ہے کہ توحید کی ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ پوری دنیا میں سب شرک 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 شرک. اچھا حدیث کیا ہے سن لیجئے. آگے ابن کثیر نے کہا اسناد و جید، اس کی سند جید ہے، سند بھی اس کی ضعیف نہیں ہے. اور اس حدیث کو ابن کثیر کے علاوہ کن کن لوگوں نے لکھا وہ بھی سن لیں آپ. میں اور کچھ تخارج پڑھ دوں. امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ 88 حدیث نمبر 159 پہ لکھا، 69 پہ. امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد 1 صفحہ 248 حدیث 81 پر لکھا. مسند البزار کے اندر جلد 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175. مشکل الآثار میں علامہ امام طحاوی نے جلد 1 صفحہ 324 حدیث نمبر 865.
मुस्नद शामीन जिल्द 2 सफ़ा 254 हदीस नंबर 1291। आपने अभी सुन लिया कि तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला को नहीं देख सकता है। इंशाअल्लाह अर्ज का जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे, कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। एक जुमला इसने बार बार कहा, देखो ये अक्ल पे जब पर्दे पड़ते ही होता है। वज करके बच गया था, वज कह के, मगर शामत आई तो भी चेहरा बोल गया। कहता है कि इस दुनिया में, ये तो सही है, हमारे उलमा का भी इस पे इत्तेफाक है कि दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है। और जो ये दावा करता है कि मैंने अल्लाह को दुनिया में देखा, ज़मीन पर देखा, माज़ अल्लाह, शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी तकमीलुल ईमान में लिखते हैं, उसकी तकफीर की जाएंगी, उसको काफिर कहा जाएगा। ख्वाब में देखना मुमकिन है और बुजुर्गान दीन ने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है, मगर वो भी बुजुर्गान दीन जिन्होंने देखा वो फरमाते हैं वो चेहरे से पाक है, उसका दीदार बिला कैफ है, उसकी कैफियत ज़बान से अदा नहीं की जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेहरे से पाक है। अब वजह तो कह दिया था तो बच जाती, तावील निकल जाती कि कुरान में वजह आया है, हालांकि अरबी में चेहरे को वजह कहते हैं, मगर शामत आई आगे कहता है इंशाअल्लाह हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। फिर दूसरी बार बोलता अल्लाह का चेहरा देखेंगे। तो अल्लाह का चेहरा नहीं है, अल्लाह चेहरे से पाक है। जब चेहरे की बात होती है तो उसमें नाक भी मानना पड़ेगा, आँख भी मानना पड़ेगा, कान भी तसव्वुर करने पड़ेंगे, होठ दांत सब आ जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि साहब आप जिन लोगों को इस्लाम समझा रहे हैं वो भी अपने खुदा का चेहरा तसव्वुर करते हैं और आप भी चेहरा, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? खुद शिरके देखिए कैसे गड़े में। आइए अब ये दूसरा शिरक इनका सुने। नहीं सुना अल्लाह अगर अल्लाह किधर खुद अल्लाह किधर आपने कहा घरे दबे, हाँ जर्रे जर्रे में। हाँ भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। अल्लाह हर जगह है ये कहना हिंदू की तालीम में है, और इस्लाम की तालीम क्या है? अल्लाह अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए एक बड़ा नाजुक मसला मैं वाज़े कर दूं, कुछ लोग देवबंदी हजरात खास तौर से इतराज़ करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जाल हक में लिखा कि ये कहना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है ये जायज़ नहीं, हर जगह मौजूद होना ये रसूलुल्लाह की शान है। तो इस पर बड़ा वबेला उठाते कि देखिए क्या कह दिया। तो असल में मसला ये है कि उलमा अहले सुन्नत की किताबें समझने के लिए इल्म भी चाहिए और अकल भी चाहिए, दोनों इनके पास नहीं है। अब सुनिए, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने खुद वाज़े किया है, हमारा अकीदा यह है कि हम कहते हैं अल्लाह मौजूद है, मगर यह जुमला कहना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है ये जुमला जायज़ नहीं है, इसलिए कि जितनी जगहें हादिस है अल्लाह जगह में समाने से पाक है। तो हम अल्लाह के लिए जगह का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जगह मखलूक है और अल्लाह मखलूक पे समाता नहीं। और जगह हादिस होती है, जो भी जगहें हैं पहले नहीं थी अल्लाह ने पैदा की, और अल्लाह उन जगहों को फना भी कर देगा। तो अल्लाह फानी चीजों का सहारा लेने से पाक है, जैसे वो पहले जगह से पाक था आज भी जगह से पाक है। जब जगह नहीं बनाई थी तब भी वो जगह से पाक था, आज भी पाक है। हर जगह मौजूद रहना ये रसूल की शान है, क्योंकि जगह भी मखलूक है, रसूल सारी मखलूक में सबसे अफजल है। यह है असल में अकीदा। लेकिन हमारा यह भी अकीदा है कि अल्लाह अर्श पर बैठने से भी पाक है। लेकिन अब आप कहोगे, अगर किसी गैर मुकल्लिद से बात करोगे, जाकिर नाइक से अगर आपकी बात हो तो कुछ कुरान की आयतें सुनाएंगे। आइए मैं एक आयत सुनाता हूं जो ये दलील में पेश करते हैं। पारा नंबर 11 है, सूरह यूनुस है, आयत नंबर 3 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दी फी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। अब इसका जो तर्जुमा इन लोगों ने किया, मैं पहले उनके तर्जुमे बता दूं, उनके तराजी। मौलवी वहीदुज़्ज़मा साहब जो गैर मुक़ल्लिदों के आलिम, कहते हैं कि बेशक तुम्हारा मालिक अल्लाह है,
जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को बनाया, फिर अपने तख्त पर बैठा और दुनिया का इंतज़ाम वहीं बैठे बैठे कर रहा है। यानी सुम्मस्तवा अलल अर्श, अर्श के मायने होते हैं तख्त, अला के मायने होते पर, सुम्मा के मायने होते फिर। अब रह गया लफ्ज़ इस्तवा। इस्तवा पे बाद हम आगे करेंगे, अब इसको ज़हन में रखें। लफ्ज़ इस्तवा का तर्जुमा इन्होंने किया बैठना, समझे। और कुछ लोगों ने मुस्तवी किया एहतियातन। मुस्तवी और इस्तवा ये दो अलग अलग बज़ाहिर मायने, लेकिन अरबी ज़बान में एक ही मायने में आते हैं। इस्तवा ही इसका मादा है, लेकिन बहरहाल अब इसको याद रखें इस्तवा, इसका तर्जुमा इन्होंने क्या किया है, बैठना। और फिर बैठना भी कैसा, वहीदुज़्ज़मा ने कहा कि अल्लाह तख्त पर बैठा हुआ है और वहीं बैठे बैठे दुनिया का इंतज़ाम चला रहा है। यानी खुदा का तस्वुर एक बादशाह की तरह किया, जैसे बादशाह अपने तख्त पर बैठता है और वहाँ से सब इंतज़ाम देखता है, चलाता है। तो अल्लाह को भी इन्होंने अर्श के ऊपर बिठाया, तख्त पे बैठा हुआ है अल्लाह और वहाँ से इंतज़ाम चला रहा है। मोहम्मद जूनागढ़ी साहब, जिनका तर्जुमा कुरान सऊदी अरबिया से मुफ्त दिया जाता है हुज्जाज को, वो कहते हैं बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। अर्श पर कायम हुआ, यानी इन्होंने भी अर्श पर कायम किया। महमूदुल हसन साहब देवबंद से ताल्लुक़ है इनका, वो कहते हैं फिर अर्श पर, फिर पकड़ा, करार पकड़ा अर्श पर। अब ये लफ्ज़ करार इतना बेहुदा है, यानी माज़अल्लाह जब तक अर्श नहीं बनाया था तो क्या बेकरार था कि अर्श बनाया फिर अर्श पर करार मिला उसको? ये कितना बेहुदा तर्जुमा है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंद से, वो कहते हैं फिर अर्श पर कायम हुआ, इन्होंने भी कायम किया। और हफीज जालंधरी कहते हैं फिर अर्श पर जा ठहरा, यानी पहले मुतार्रिक था, इधर उधर भटक रहा था, फिर अर्श बनाया तो वहाँ जाके ठहर गया। ये तराजी में इन लोगों के। लेकिन आइए अर्श के ताल्लुक से उलमा अहले सुन्नत के क्या अकायद हैं और कुरान की खुद क्या यहाँ मंशा है, वो आगे सुने। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस ताल्लुक से एक पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है अल इत्कान फी उलूमिल कुरान। सफ़ा नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सफ़ा 3 पर फरमाते हैं कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये जो आयत करीमा ये आयत मुतशाबिहात है। आयत मुतशाबिहात क्या होती है? आयत मुतशाबिहात वो आयतें हैं जिसके मायने अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान में खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है एक मकाम पे कि महबूब 2 तरह की आयतें हम आप पर उतारते हैं, एक मुतशाबिहात है और एक महकम है, एक महकमात है। आयत महकम ये होती है जिसके मायने भी मालूम, मतलब भी समझ में वाज़े आ रहे, हुक्म भी समझ में आ रहा है, जिस पर अमल भी करना है। और मुतशाबिहात ये कि जिसके मायने इंसान को नहीं बताए गए, अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि ये आयत मुतशाबिहात है। और कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है जिनके दिलों महकमात को छोड़ते हैं और मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं, दलील और अकीदा मुतशाबिहात से बनाते हैं। तो अब अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, जब ये मुतशाबिहात में से और ये जब वाज़े हो चुका कि इसके मायने नहीं मालूम, तो इसके मायने बैठना करना, ये माज़अल्लाह मनमायनी तर्जमा करना है और मनमायनी अकीदा गढ़ना है और अल्लाह को अर्श पर बिठाकर उसको माज़अल्लाह मजबूर साबित करना है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने किताब लिखी इस फन पर जिसका नाम है किताबुल अस्मा व सिफ़ात। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 150 है। वो कहते हैं अल इस्तवा फल मुतक़द्दिमून मिन सहाबिना रज़ियल्लाहु अन्हुम कानू ला युफ़स्सिरूनहा वला यतकल्लमून फ़ीही का नबी मज़हबिहिम फ़ी अमसालि ज़ालिक। वो कहते हैं इस्तवा के मुताल्लिक जो कुरान में अल्लाह ने इस्तवा फरमाया, इसके मुताल्लिक हमारे असहाब मुतक़द्दिमीन यानी पहले के अकाबिर उलमा, पहले जो गुजर गए, इमाम बहकी कह रहे तो उससे और पहले के उलमा, वो कहते हैं कि इस आयत की वो कोई तफसीर और मुराद बयान नहीं करते थे, खामोशी इख्तियार करते थे इसके बारे में, इस आयत के बारे में, और इसके बारे में कोई कलाम नहीं करते थे। वला यतकल्लमून फ़ी, इसके बारे में कोई कलाम, कोई गुफ्तगू नहीं करते थे। वैसे ही जैसे सिफात के ताल्लुक से जो मुतशाबिहात आयते हैं उसके बारे में जैसे वो खामोशी इख्तियार करते थे, वैसे इस आयत के बारे में भी वो खामोशी इख्तियार करते थे। इमाम